the system of linear equation, many different methods you have studied already, but in this paper and in this unit, we'll study some more methods to solve. And here, this is also categorized in two ways. One is direct method, direct method, and indirect method. You will study the first method is uh, Gauss elimination. Gauss elimination method. The second method you will study here, Gauss-Jordan. Gauss-Jordan method, sorry, Gauss-Jordan method, and the third you will study this LU decomposition. LU decomposition method, and the fourth method is Cholesky. Okay, Cholesky decomposition. Cholesky decomposition method. And the other method I already is iterative method. Iterative method. Iterative method, or you can also say approximation method. And in this method, you will study the first Jacobi method, and second is Gauss-Seidel. Gauss-Seidel, and the third one is relaxation method. Relaxation method. Okay, students, if it is clear that you will method, and one by one we'll discuss this all methods, and most of the portion of this unit is covered by this all method, and some part is covered by eigenvalue problem. So first of all, we'll discuss here this all. Okay, one by one. So in direct method, we are taking first here. In direct method, we are taking the first method, Gauss-Jordan method. And as you can see here, this is the direct method. So sorry, not Gauss-Jordan is first. Gauss elimination is actually first method. Gauss elimination. Okay. As you can see here, it is written here direct method, so that if you apply this Gauss elimination process on a given problem, then you will reach definitely on one step on your solution. Okay, so I'm taking here Gauss elimination method. Gauss elimination method. Am I audible? Always be in the form of this a11x1 and plus a12x2 plus a13 sorry, a13 x3 and plus so on a1 and xn.
is equal to V1. Okay, system of equation is, general system of equation is in the form this, the first equation, this 21 x1 plus a 22 x2 plus a 23 x3 and plus a2n xn is equal to p2 and a31 x1 plus a32 x2 plus a33 x3 plus so on. This a3 and xn equal to b3, and similarly you can take many equations so that it forms a system of linear equation, that is n equations you are taking. So n1 x1 plus a n2 x2 plus a n3 x3 plus so on. This is a n n x n. Why this is a n n x n? Because of the n variables, and corresponding to n variables, this is x1 x2 x3, this n variables, and corresponding to this n variables there are n coefficients in one equations. So x a11 a12 a13 and so on up to a1n, and similarly you are taking n equations consequently. So this first suffix denotes the number of equations, that an1 an2 an3, this all an nxn, this is equal to, the constant term will be bn. Okay, this is n equations, system of n linear equations in front of you, and you have to solve this by Gauss elimination method. तो स्टूडेंट्स, आप लोग पहले से मैट्रिक्स में ये पढ़े होंगे, इंटरमीडिएट में भी पढ़े होंगे, फिर उसके बाद आप लोग फर्स्ट ईयर की जर्नी पूरी किए हैं तो फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होंगे कि किसी मैट्रिक्स में हम रिडक्शन कर सकते हैं, उसके एलिमेंट्स को एक तरह से चूज, उसके मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस के थ्रू। पता है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करते आए होंगे पहले से, और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग क्या करते हैं वो आप लोगों को याद होगा, कौन कौन से ऑपरेशंस करते हैं। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग या तो रो के रिस्पेक्ट में या तो कॉलम के रिस्पेक्ट में ये तीन तरह के ऑपरेशंस हैं वो हम लोग यूज करते हैं। जैसे आर आई एंड आर जे को इंटरचेंज कर दें, या सी आई और सी जे, मतलब किसी भी दो या रो या किसी भी दो कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, पर्पस क्या है कि पहले एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं कि हम इसको यूज क्यों करते हैं इसमें। तो एक तो ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग यूज करते हैं, दूसरा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग यूज करते हैं कि ये कोई ith रो है और उसको किसी एक स्केलर से, मान लीजिए चलिए x ना लीजिए, इसको कुछ और ले लीजिए, इसको आप ले लीजिए l ले लीजिए, ठीक है, l ले लीजिए, k ले लीजिए, k ले लीजिए, ज्यादा अच्छा है, जनरली k को स्केलर हम लोग लेते ही हैं। तो k स्केलर से मल्टीप्लाई करके इसको अगर जो रिप्लेस किया जाए तो ये भी किया जा सकता है, और सिमिलरली यू कैन चेंज दिस इन कॉलम आल्सो। c, okay, sorry, ci is replaced by k into ci, and the third elementary transformation you always use, that I is replaced by ri plus k rj. Similarly in column, ci is ci plus k cj. ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होंगे, याद आ रहा है कि नहीं आप लोगों को?
इतना तो यूज किए हैं, याद तो होगा ही, क्यों? Am I audible to you? Okay. Yes. तो अब ये Yes, sir. करने का पर्पस क्या है, थोड़ा सा पहले समझ लीजिएगा। ये एक जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, क्या इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम लोग ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख सकते हैं? मैट्रिक्स पढ़े होंगे तो ये मालूम ही होगा। Yes, sir. और ए एक्स प्लस Yes. ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में जब लिखते हैं तो ये हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो जाएगा, ये हमारा वेरिएबल मैट्रिक्स हो जाएगा, और ये हमारा कांस्टेंट मैट्रिक्स हो जाएगा। अब इस मैट्रिक्स को अगर जो हम अपर ट्रायंगुलर के फॉर्म में रिड्यूस कर लें, और ये हमारा x1 xi मतलब जो भी होगा इस तरह से, ठीक, और ये हमारा जो भी मैट्रिक्स होगा b1 b2 एंड सो ऑन, जो भी होगा, ठीक है। अगर जो हम लोग इस तरह से रिड्यूस कर लें और रिड्यूस करने के बाद ऑपरेट करें, तो ये वाला टर्म ये वाला टर्म अगर जो मतलब लास्ट रो इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर एक ही टर्म होगा, और उसको कंपेयर करेंगे इससे, तो निश्चित तौर पे ये लास्ट वाले वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. अब यहां से एक वेरिएबल मिल जाएगा, फिर इसके ऊपर वाले में दो वेरिएबल्स होंगे, और ये वेरिएबल पता है यहां वैल्यू पुट करने के बाद ये वैल्यू निकल जाएगी। और सिमिलरली बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हुए हम लोग सारे वेरिएबल्स की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट के लिए मैंने ये बताया कि ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करिए। ओके, तो स्टेप 1 क्या करते हैं कि देखिएगा। स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे वी एलिमिनेट x1 फ्रॉम, फर्स्ट का x1 तो एलिमिनेट करेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल का एक एलिमेंट है ये। प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स को हम एलिमिनेट करते चलेंगे। तो वी एलिमिनेट x1 फ्रॉम सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन, ठीक है, सारे में से एलिमिनेट करेंगे, और ये एलिमिनेट करेंगे इन्हीं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस के थ्रू। तब हमारा जो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो हमारा कुछ इस फॉर्म का बन जाएगा, a11x1 प्लस a12x2 प्लस सो ऑन, इस टाइप का बन जाएगा, a1n xn इक्वल टू b1। फिर उसके बाद जब नीचे के ये सारे हमने एलिमिनेट कर दिए, तो निश्चित तौर पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करके जब इसको हमने सारे को एलिमिनेट किया, तो एलिमिनेट करने के बाद ये सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू में कुछ फर्क तो पड़ ही जाएगा। तो मान लीजिए ये ए डैश से हमने डिनोट कर दिया जो चेंज हुआ उसमें, उसके नाते। फिर उसके बाद ए डैश टू एन एक्स एन इज इक्वल टू बी टू डैश, ठीक है, ये कांस्टेंट ये भी चेंज होगा थोड़ा सा। फिर उसके बाद सिमिलरली इसी तरह से जब हम चेंज करते आएंगे तो फाइनली लास्ट वाला जो एलिमेंट होगा ए एन टू डैश एक्स टू प्लस सो ऑन, और ये जो एलिमेंट होगा ए एन डैश डैश, मतलब और कुछ नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस के रीजन से वो कुछ चेंज हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेप 1 में ये आपने किया, स्टेप टू में अब आप करेंगे फिर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करके इसको जब एलिमिनेट करेंगे, तो एलिमिनेट, अब यहां पर एलिमिनेट करेंगे x2 फ्रॉम, x2 को, अब देखिए ये प्रिंसिपल डायगोनल का एक एलिमेंट ये हो जाएगा, तो इसको भी अब हम नहीं डिस्टर्ब करेंगे। अब क्या डिस्टर्ब करेंगे, थर्ड एलिमेंट, थर्ड इक्वेशन में थर्ड के पहले वाले को हम जस्ट a12x2 प्लस a13x3 प्लस सो ऑन a1nxn ठीक है इक्वल टू b1।
और दूसरा जो आपका था वो यही रहेगा a22 डैश x x2 प्लस a23 डैश x3 प्लस सो ऑन। और एक मिनट, a2n डैश xn इज इक्वल टू b2 डैश। अब यहाँ पर जब x2 को एलिमिनेट कर दिया थर्ड फोर्थ इन सब में से, तो इसके आगे के जो इक्वेशंस होंगे वो ये वाला एलिमेंट तो रह नहीं जाएगा एलिमिनेट करने के बाद। अब ये यहाँ पर हो जाएगा a33 डबल डैश, ठीक है, क्योंकि डैश तो पहले था और उसके बाद उसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन हुआ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करने के बाद, तो a33 डैश x3 प्लस सो ऑन, ये हो गया a3n डबल डैश xn इज इक्वल टू b3 डबल डैश, ठीक है। तो ऐसे करके फाइनली हमारे पास जो लास्ट में होगा वो लास्ट वाले में an3 डबल डैश x3 प्लस सो ऑन ऐसे जाएंगे और लास्ट में आपका जो एलिमेंट होगा ann डबल डैश xn इक्वल टू bn डबल डैश। तो अब आप देख रहे हैं कि इसी पैटर्न को अगर जो हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते चलें तो लास्ट में हमारा फाइनली जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो मिलेगा a11x1 प्लस a12x2 प्लस a1nxn इक्वल टू b1। और फिर उसके बाद ये वाला टर्म तो एलिमिनेट हो गया है, a22x2 प्लस सो ऑन, ये आ जाएगा a2nxn इज इक्वल टू b2। अब यहाँ पर डैश से मैं नहीं डिनोट कर रहा हूँ, बस समझने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि ऐसे फाइनली जब चलेंगे तो लास्ट में हमारा जो एलिमेंट होगा annxn प्लस नहीं बल्कि इसके सारे के आगे के सारे टर्म्स तो वेनिश हो चुके हैं, तो bn। अब यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है कि ये हमारा, जस्ट वेट, this ann is a constant term, this is coefficient actually, this is a scalar and this is also a scalar, so from here you can calculate the value of xn, ठीक है। xn की कुछ वैल्यू आएगी, ऑफ कोर्स यहाँ पर bn अपॉन ann टाइप का होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी ये इसके ऊपर वाले में रखेंगे तो xn की वैल्यू निकल चुकी रहेगी और इसको जब ऊपर वाले में रखेंगे तो xn माइनस, और इसको हमें रिड्यूस करना है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करने के बाद ये दिस कैन बी आल्सो रिटन एज x1 माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 6, 2x1 प्लस 4x2 plus x3 equal to minus 2, sorry, 4x2 plus x3, this is not minus 2, this is plus 3, and 3x1 plus 2x2 minus 2x3 equal to minus 2, ठीक है। ये suppose that this is equation 1, this is equation 2 and this is equation 3। अब इनको सॉल्व करने के लिए एक काम ये करें कि हमारा तो पर्पस यही है कि एलिमिनेट करना है x1 इसमें से भी दोनों में से x1 एलिमिनेट करना है। तो x1 एलिमिनेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि 2 इंटू 1 माइनस 2, ठीक है, 2 इंटू इक्वेशन 1 माइनस, तो ये पहला इक्वेशन तो वैसे ही है, पहले इक्वेशन में तो कोई चेंज नहीं किया, दूसरे और तीसरे में से ये जो चेंज किया है हमने इक्वेशन 2 इंटू 1 माइनस 2 ये कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद इसको जब सब्ट्रैक्ट किया तो 4 माइनस दिस माइनस 3 6 या 18 माइनस 18, दिस इज माइनस 20 नाउ, तो माइनस 20, ठीक है। ये इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 ले लीजिए, 5 माइनस 4, ये जब सब्ट्रैक्ट किया तो फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज x1 माइनस x2 प्लस x3 इक्वल टू 6 एंड 6 x2 माइनस x3
इक्वल टू -9, ये है ही। और बाकी इसमें से 6 इंटू 5 मल्टीप्लाई करके जब इससे सब्ट्रैक्ट किया तो ये वाला टर्म चला गया। एंड फाइनली ये लास्ट में आपका जो बच रहा है ये 6 इंटू 5 और उसमें मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 5 में 6 इंटू 5 6 एंड इसमें से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -5f इक्वल टू माइनस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। इक्वेशन 1 आपका पहले से है, इक्वेशन 6 ये हो गया, और इक्वेशन 6 क्या, ये इक्वेशन 4 ही था, ठीक है, इसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं है। ये वाला इक्वेशन आपका जो है 6 है। अब इन तीनों को बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो x1 की वैल्यू 2 आ गई और x2 की वैल्यू -1 आ गई और x3 की वैल्यू 3 आ गई। इसी तरह से बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करके या वैल्यूज आपकी निकल गई, और यही टोटल कुल मिला जुला के गॉस एलिमिनेशन मेथड यही है आपका, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन इस तरह से आप कर सकते हैं। ये मैंने 3 वेरिएबल का क्वेश्चन लिया है, अगर जो 4 वेरिएबल का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना हो तो 4 वेरिएबल का कर सकते हैं आप। उसी तरह से एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, इसको